سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے، انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین. میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے. نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے. چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پہ UAPA لگتا ہے. انہیں سب کو UAPA لگا کے بند کرنا چاہیے نا. شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں. سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے، آپ یہیں تشریف لائے. یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے. یہ سراسر غلط، تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے. اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے. مدنی صاحب نے آج نقاب چہرے سے اتار دیا اس بڑی میٹنگ کا. ارشد مدنی، محمود مدنی اور کوئی بھی اس طرح کا انسان، اندریش کمار جی کا بیان آپ کوئی بھی پڑھ لیں، ہو بہو وہی بات کہہ رہے ہیں جو مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں. انسان انسان کے برابر ہوتا ہے، یہ ان کو 5000 سال سے بھارت کا سمویدھان نہیں سمجھا پایا، یہ ارشد مدنی اپنی بھاشن دے کے سمجھا لیں گے. کاروان قدس اور شاعری چینل پر آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال کیا جاتا ہے. ناظرین، آج کل سوشل میڈیا یا میڈیا پر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ پر ایک ٹاپک بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان جو کہ انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اس کو منو بولتے ہیں، ہم ان کو آدم بولتے ہیں. تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس پر جو ہے کچھ علماء کا بھی رد عمل آیا ہے، اور بہت سارے پنڈت جو ہیں اور سادھو سنت ہیں وہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان سے اتفاق رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میڈیا پر یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ اسلام کیا سب سے پہلا مذہب ہے یا پھر 1400 سال پہلے شروع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ محمود پراچا نے بھی مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے بارے میں کچھ کہا ہے. آپ اس ویڈیو میں مکمل دیکھیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک بنے رہیں. اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ جو کسی انٹرویو میں بیٹھتا ہے یا کوئی انٹرویو دینے والا ہے، چاہے وہ جاب کے لیے ہو یا سماج میں لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے. تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کی اور محمود پراچا صاحب کی ویڈیو. انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے. وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا. لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے سردار کو کر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا. بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول
अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता, लेकिन नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर यहाँ एक आदम था, उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर, जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको तो उनके पुतले को, धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदमी आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद, उतने ही तरह, उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मिट्टी नरम है। जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहाँ से पैदा हुई है। तो मौलाना अरशद बदनी की एक वीडियो वायरल होते हुए नजर आई है, जिसमें उन्होंने मनु और
आदम अलैहिस्सलाम को एक ही बताया है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, और जिस चीज़ के लिए हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश को ये समझाने के लिए कि इस देश में, इस मुल्क में दो ही वाद है, मानसिकता का हो सकता है यानी मनुवादी हो सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, बाकी सारे मज़हब जो दुनिया के हैं वो इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई क्रिश्चियन भी नज़र आ सकता है लेकिन उसकी मानसिकता मनुवादी हो सकती है अगर वो इंसान को इंसान से बड़ा या कम समझता है। तो कोई सिख भी हो सकता है, देखने में सिख लगेगा, लेकिन अगर उसकी मानसिकता इंसान को छोटा बड़ा मानने की होगी तो वो सिख धर्म के खिलाफ है। उसी तरीके से जो मुसलमान मनुवाद को मानता है, मनुस्मृति को मानता है या मनुवादी मानसिकता का है, तो वो मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म का मानने वाला हो ही नहीं सकता। ये बात हम लोग बार बार कहते रहे हैं इसी बात की वजह। और जितने भी देश के मजलूम हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज, वो एक तरफ हैं और मनुवादी मानसिकता के लोग दूसरी तरफ हैं। तो RSS के लोगों को, मनुवादियों को इस बात से बड़ी तकलीफ थी कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में जो वो लोग कंफ्यूजन पैदा करने चाहते थे वो हम लोगों की जो अम्बेडकरवादी हैं उनकी मेहनत से दूर हो रही थी, और SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सभी मनुवादी मानसिकता को रिजेक्ट करते हैं, मनुवादी मानसिकता को नहीं मानते, मनुवादी मानसिकता का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर होता है और सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए। तो अब मनुवादियों के मन में बहुत कुलबुलाहट थी, बहुत परेशान थे, अम्बेडकरवाद से ही परेशान है सबसे ज़्यादा, और उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चीज़ें तो वो खुद ही कराना चाहते। तो बहुत दिनों से ये साजिश चल रही थी हम लोगों के खिलाफ, अम्बेडकरवादियों के खिलाफ, जिसका एग्जाम्पल फैज़ान मुस्तफ़ा, जिन्होंने जो राजस्थान हाई कोर्ट में एक जगह मनु जी की मूर्ति है उसकी तारीफ की और फोटो खिंचवा के किया, ये उस साजिश का हिस्सा थी। उसके बाद हमारे एक अभी अब्दुल नज़ीर साहब, जज साहब रिटायर हुए हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसले में दिया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े होके उनकी जो शराब पार्टी हुई थी उसमें हाथ मिला के खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई थी, और उसको उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है, रंजन गोगोई साहब ने। अब्दुल नज़ीर साहब रिटायरमेंट होते ही गवर्नर बना दिया, उन्होंने भी मनु की और मनुस्मृति की तारीफ की थी। वो भी ऑब्वियसली नजर आ गई कि मनुवादियों के कहने से की होगी, और मैं इन दोनों लोगों का शुरू से क्रिटिसिज्म करता रहा हूं। ऑब्वियसली नजर आ गई कि मनुवादियों के कहने से की होगी, और मैं इन दोनों लोगों का शुरू से क्रिटिसिज्म करता रहा हूं कि ये लोग मनुवादी मानसिकता के हैं, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, भारत के संविधान से। हालांकि दोनों ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्यूरिस्ट बनते हैं, तो इनका भारत के संविधान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी भी बहुत सारी प्रदर्शन देखे, सुरेश चौहान के को देखा, बहुत सारे संत जो अपने आप को कहते हैं उनको देखा कि भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र जो है मनुस्मृति से चलेगा। और आज मौलाना अरशद मदनी, अभी कुछ दिन पहले भी एक डेलीगेशन मिल के आया ना RSS, मोहन भागवत जी से MRM है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसमें क्या नाम है, इंद्रेश कुमार, जिनके ऊपर आतंकवाद के भी एलिगेशंस लगते रहे, उनसे बड़ी गठजोड़ करके बड़ी गहरी मीटिंगें कर रहे हैं हमारे कुछ लोग, सो कॉल्ड नजर आने में मुसलमान लेकिन अंदर से मनुवादी मानसिकता के, वो लोग भी मिल के आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन RSS की और मनुवादी मानसिकता की थी कि इस तरह की बात करें कि मनु को आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया जाए, ये बोला जाए कि दोनों एक ही हैं। क्या कोई भी जुडाइज्म मानने वाला, यहूदी मजहब को मानने वाला, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, सिखिज्म को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला, जैनिज्म को मानने वाला, लिंगायत मजहब को मानने वाला, कबीर को मानने वाला, रविदास को मानने वाला, रायदास को मानने वाला, कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैं मनुस्मृति में विश्वास रखता हूँ, मनु हमारे मजहबी रहनुमा थे, ऐसा कोई भी कह सकता है? सिर्फ वही कह सकता है जो मनुवादी मानसिकता का हो, जो दिल के अंदर
दिल से तो मनुवादी हो। मनुवादी मुसलमान जो है वो मुसलमान नहीं होते, वो मनुवादी ही होते हैं। तो अरशद मदनी साहब ने आज नकाब चेहरे से उतार दिया इस बड़ी मीटिंग का। ड्रामा उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन असली मकसद ये था कि मनु को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान लाया था, तो बात ये थी कि मनु को आदम अलैहिस्सलाम से मिला के मुस्लिम कम्युनिटी को SC ST और OBC से दूर करने की साजिश है। और RSS ये चाहती है कि मुसलमानों को बेवकूफ बना के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC भाई और बहनों से दूर। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, भारत के संविधान के भी खिलाफ है और हर एक मजहब के जो मनुस्मृति को नहीं मानता उसके खिलाफ है। तो हम सब लोगों को ये साजिश समझनी चाहिए। ये अरशद मदनी और इनके भतीजे जो हैं महमूद मदनी, ये सब मनुवादी मानसिकता के हैं। इन्हीं लोगों ने ये हमारे बीच में जो अशराफ और अजलाफ की जो दरार डाली है, ये यही मनुस्मृति के मानने वाले लोग जो मुस्लिम धर्म में घुस आए हैं, कुछ जो अपने आप को मुसलमान दिखाते हैं मुसलमान नहीं, हो ही नहीं सकते। ये कोई भी इस तरह का इंसान जो मनुवाद को, मनुवादी मानसिकता को डिफेंड करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उसका बाइकआउट होना चाहिए। वो भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ है और सारे मजहबों के खिलाफ है जो मनुस्मृति को नहीं मानते, जो कि सारे ही मजहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नफरत फैलाने वालों को ये मौलाना अरशद मदनी समझा लेंगे, उनसे ज्यादा इस्लाम मजहब को उन्होंने पढ़ रखा है। इंद्रेश कुमार भी पढ़ लें, हूबहू वही बात कह रहे हैं जो मौलाना अरशद मदनी कहते हैं। इनको 5000 साल से जो कोई ना समझा पाया, अरशद मदनी समझा लेंगे उन्हें। इंसान इंसान के बराबर होता है, ये उनको 5000 साल से भारत का संविधान नहीं समझा पाया, ये अरशद मदनी अपनी भाषण देके समझा लेंगे। आपको ये बात समझ में आती है? एक ही पॉइंट था इसकी सारी जो ये मीटिंग कराई गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था कि मुस्लिम कम्युनिटी को खड़ा दिखाया जाए, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जाए, मनुस्मृति के साथ खड़ा दिखाया जाए, ताकि SC ST OBC और दूसरी माइनॉरिटी के मजहब मानने वालों से। और कोई इस साजिश का हिस्सा नहीं है। RSS की सबसे बड़ी, मनुवादियों की सबसे बड़ी चालबाजी ये होती है कि वो बज़ाहिर कुछ दिखाते हैं और होते कुछ और है, उनका मकसद कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। ये भी दिखाने के लिए उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा। नाज़रीन, आप लोगों ने ये वीडियो तो मुकम्मल देख ही लिया होगा और इससे पहले भी हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग इस तरह के वीडियो देखकर तज्ज़िया करें। आपका नज़रिया क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि आपको जो जवाब देना है वो ख़ुद देना है। आपकी जगह आकर के कोई दूसरा बंदा आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकता। लोग जो आपसे सवाल कर रहे हैं उनका जवाब आप ख़ुद तलाश करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता, मैं समाजियात के बारे में नहीं जानता, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानता। इस तरह के सवालात चाहे वो आपसे कहीं पर भी किए जाएं, इंटरव्यू में किए जाएं या आमने सामने लोगों में बातचीत होती है वहाँ किए जाएं या XYZ कहीं पर भी किए जाते हैं, तो उनका जवाब आपको ख़ुद ढूंढना है और ख़ुद देना है और लॉजिकली देना है। इसके लिए आप लोगों को तैयारी की ज़रूरत है। तो जैसे ही सवालात आजकल समाज में उठाए जा रहे हैं, चाहे वो तलाक़ के ताल्लुक़ से हो, CAA NRC के ताल्लुक़ से हो, आतंकवाद के ताल्लुक़ से हो, या फिर अब एक नया मुद्दा ये चल गया है अल्लाह ओम का मसला हो, तो ये तमाम सवालों के जवाब आप देखें कहाँ किस नतीजे पर आप पहुँचते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग जो है इस तरह के सवालात का जवाब देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर जगह ये सवाल आपसे किए जाएंगे और भी इस तरह के बहुत सारे सवालात आप लोगों के सामने आएंगे। चाहे आप जॉब करें, जॉब के लिए इंटरव्यू दें, या जॉब ना कर रहे हों, सफ़र कर रहे हों, या लोगों के दरमियान में बैठ रहे हों, या सियासी मैदान में हो, आप समाजी मैदान में हो, तालिब इल्मी के दौर में हो, स्टूडेंट्स लाइफ हो, या कोई भी हो, हर जगह आपसे ये सवालात किए जाएंगे। हमसे भी होते हैं, आप लोगों से भी ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।